हसान आप बता दें जब रेडी हो जाएं हम फेसबुक लाइव के लिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। Okay. So, Assalamu alaikum. My name is Sana, and I'm the Creative and Outreach Manager at the National Incubation Center, Karachi. And today, in collaboration with Pace College of Advanced Studies, Rotary Club, and Tech Talks, we are hosting this webinar, Startups in Pakistan, a Turning Point or a Bandwagon. तो पर्पस जो है इस पूरे वेबिनार का ये है कि पेस कॉलेज जो है इज इन प्रिपेयरिंग जूनियर सीईओ चैलेंज है जिस पे काम चल रहा है, एंड द कंपटीशन इज गोइंग टू टेक प्लेस सून। सो वी थॉट के आवाज आई डोंट नो कहीं एको हो रही है किसी के माइक में, सॉरी। तो प्लान यही था कि कुछ पैनलिस्ट को इकट्ठा किया जाए एंड जनरल ट्रेंड्स जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के हैं इन पाकिस्तान और सस्टेनेबिलिटी जो है इन स्टार्टअप की, उस हवाले से बात की जाए। So I am just going to introduce our panelists first, and then we have a few questions for them. Then we'll start. So we have Mr. Adil Darvesh, founder and principal at Pace College, Mr. Umar Abdeen, project director, NIC Karachi, Zora Umar, founder, the Mentoring Hub, Huma Jabeen, consultant and educationist, and Asfar Hussain, program manager, NIC Karachi. So thank you so much all of you for joining us today. तो पहला सवाल जो है वो मेरा अदिल साहब से है कि अदिल साहब, इन योर ओपिनियन, what are the trends of startups, in general trends of startups that you see in Pakistan, and in your opinion, is the ecosystem flexible enough, or if it's just a trend that is going to fade out eventually? So अगर आप वो share करें, and then we'll proceed with the next question. Thank you so much, Sana, for giving us the opportunity and sharing the idea of the Junior CEO Challenge. The trends, like you asked, is basically, obviously it's an upside trend and it has been increasing exponentially. And with the passage of time, the years passing on, we are increasing the number of the startups coming in the industry. And this rising potential or the rising trends in Pakistan is not only promoting the tech-based startups, but it also non-tech-based startups where students are coming up with the innovative ideas. I would like to share one example over here that we at Pace College have introduced entrepreneurship as a subject at an intermediate level, which has never been done before. And initially, it was challenging for us being part of the academic industry, how to take up this concept and how to build the entrepreneurial mindsets. But Alhamdulillah, over the last 2 years, students are coming up with the brilliant ideas and they are contributing. वो बहुत अच्छे ideas लेकर आ रहे हैं. And more importantly, सबसे अच्छी चीज जो इस trend में ज़्यादा हो रही है, जो आपका ecosystem है, जो especially in the institutions like NICs, the supporting bodies, the government, and more importantly, the investors and the financing coming in, it has been multifold times increasing. And these, I'm sure आप भी इस बात से agree करेंगे, statistics in itself जो है एक evident fact है इन सब चीजों का. Right. So, sorry, we are joined by another panelist, which happens to be NIC Karachi's Cohort 7 incubated startup as well, Ijaz Athar Sahab, who's the founder and CEO of Right Careers, and he is also planning something similar around the Global Entrepreneurship Week. So, thank you so much, Ijaz Sahab, for joining us, and welcome. Thank you so much for having me. Yeah. So Asfar, are you there? My next question is for you about the general state of mind जो हमारे startup हैं हमारे ecosystem में. Okay, great. So अभी जो currently जो startups हमारे हैं वो एक बहुत ही positive minds हैं, because a lot of investment is coming into Pakistan. There's a lot of positivity. There are few sectors that are supported by the government as well. The overall economic situation
might not have improved the way most of us want to see it, but at the same time, investment क्योंकि पाकिस्तानी startups में हो रही है, so this is the best time to start something new. और especially जो mobility में है, transportation में है, tech है, health tech, fintech, e-commerce, they see a lot of change. उसकी वजह एक सबसे बड़ी ये भी है कि there's a big number of आपकी यूथ है जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आपकी यंग पॉपुलेशन जिसके पास जो स्मार्टफोन्स यूज कर रही है उसके साथ साथ आपकी स्मार्टफोन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है सो अ लॉट ऑफ इनोवेशन इज आल्सो हैपनिंग एट द सेम टाइम सो ये एक बहुत ही पॉजिटिविटी है जो स्टार्टअप्स जिनका माइंडसेट इस वक्त इनोवेट करने का है आगे बढ़ने का है यूथ के लिए को ड्राइव यूथ लेड प्रोजेक्ट्स का है वो सारे अच्छा टाइम है बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सो आई थिंक सो current state of mind is very positive but at the same time they really want enablers like us the incubation centers and especially the government to have some more policies that can help them especially on the legislation governance side helping them with their business and all so great time for them startups overall as well. आई थिंक आपने जो अगला सवाल था जनरल बिहेवियर का उसका जवाब भी इसी में दे दिया सो इन योर ओपिनियन वेयर मतलब दी स्टार्टअप्स मतलब 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं एनी आइडिया एंड देन इजाज साहब इफ यू कैन आल्सो देन टेक द सेम क्वेश्चन फॉरवर्ड एंड आंसर टू दैट आई थिंक सो जो और उस पर जाहिर है एजाज ज्यादा बताएंगे फंक्शनिंग स्टार्टअप के फाउंडर हैं But I think that the next 5 years are 100% मेरा ये मानना है कि क्योंकि मेच्योरिटी बढ़ गई है स्टार्टअप की इन्वेस्टर्स की इकोसिस्टम की सो आपको ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स दिखेंगे सो अगर अभी हम हमारा इकोसिस्टम में लोग कहते हैं 600 to 1000 स्टार्टअप्स हैं खासतौर पर टेक में आपको 5 साल में मेज की बहुत ही लेवल पे मल्टीप्लिकेशन हो और बहुत ज्यादा नंबर्स पे स्टार्टअप दिखें मैच्योर फाउंडर्स आए जो अपना बिजनेस छोड़ के इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट से फायदा उठाएं जनरल बिहेवियर यही रहेगा स्टार्टअप्स का जो मैं देख रहा हूँ वो ये होगा कि क्योंकि मैच्योरिटी है तो यहाँ पे भी होगी जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्टार्टर नहीं आ रहे हैं तो रोबोटिक्स में IoT बेस्ड स्टार्टर्स AI बेस्ड स्टार्टर्स ज्यादा दिखाएंगे ज्यादा नीश पे काम करने वाले स्टार्टर्स आएंगे बट ये जरूर है कि more and more people will want to they would definitely want to enter some or independently वो अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे सो ये मुझे दिखता है कि एक नई बिहेवियर होना है जिसमें ज्यादा काम हो रहा होगा ज्यादा इनोवेशन पे ज्यादा नए बिजनेस पे काम हो रहा होगा अच्छा if I speak from my end so unfortunately I won't be singing a happy song and I'll be playing the minor notes क्यों क्योंकि इनिशियली अगर हम ये बात समझें कि हम लोगों को जो एक एजुकेशन सिस्टम मिलता है तो उसमें क्रिएटिविटी को फ्लॉरिश करने का कोई मौका नहीं दिया जाता आई वुड से कि हाँ देयर आर अ कपल ऑफ स्कूल्स दैट यू कुड काउंट ऑन कि शायद जहाँ पे कुछ बेहतर सिलसिला हो वरना एक वो जिस माहौल से मैं आया हूँ तो दैट वाज अ रटिफिकेशन पॉलिसी एंड आई एम ग्लैड टू सी कि मेरी बेटी जहाँ पढ़ रही है शी इज इन द 8th grade तो वो चीज कम हुई है थोड़ी डाइल्यूट हुई है बट स्टिल देयर अब ऐसे में अगर आप देखें कि स्टार्टअप क्या होता है वी गो डाउन टू द वेरी बेसिक्स ऑफ इट
तो स्टार्टअप एक वो वेंचर है जो आज से पहले नहीं हुआ। लाइक उबर वॉज अ स्टार्टअप एंड करीम इज अ मी टू। होता क्या है कि स्टार्टअप को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, उसका टारगेट नीश क्या है, टारगेट नीश का पेन क्या है, तो वो उसको सारा टाइम एक्सप्लोरेशन में लगता है। तो उबर took its sweet time in getting to a place while Kareem took all the knowledge from Uber। और 3 से 5 साल के अरसे में आपने देखा कि वो वहां तक पहुंच गया कि उबर ने उसको पार्टनरशिप या एक्विजिशन की तरफ ले गया वो। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है स्टार्टअप दम के अंदर, व्हेन आई वाज अ किड बैक इन 90s, टीन एज के अंदर जब मैं था, तो हमारे यहाँ एक फैंसी टर्म थी रॉक स्टार। वी ऑल वांटेड टू बी रॉक स्टार बैक देन। उससे पिछली सदी डेकेड के अंदर एवरीवन वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट। हमारा जो डेकेड आ गया है उसमें एवरीवन वांट्स टू बी अ स्टार्टअप फाउंडर बिकॉज इट्स द न्यू कूल, इट्स द न्यू ब्लैक। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि एवरीवन इज ओपनिंग एन ई कॉमर्स स्टोर, डूइंग ड्रॉप शिपिंग, कोरियर सर्विस। खोखे को जो हमारे यहाँ छोटी वाली दुकानें होती है, रिटेल शॉप, उनको डिजिटल कर रहे हैं एंड दे आर कॉलिंग देमसेल्फ स्टार्टअप। उनमें से जो पहला था वो स्टार्टअप होगा, उसको फंडिंग में भी बहुत अच्छी, लेकिन रेस्ट ऑफ यू आर नॉट स्टार्टअप अनफॉर्चुनेटली। हो सकता है उन्हीं में से कोई को फाउंडर निकल के उसने एक अपनी टीम बना ली और उनकी लर्निंग्स को लेके, जो कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का झगड़ा था, हमने जिस तरह समझा है उसको। तो यहाँ पे अब टेंशन ये आ रही है, चैलेंज ये आ रहा है कि आज से 2014 से हमारे यहाँ स्टार्टअप का वर्ड सुनने में आया था। उस वक्त से अब तक, उस वक्त टाइम पे जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली थी, आई डोंट सी देम एनीवेयर ऑन द ग्लोब। Sukoon.com इज वन ऑफ देम। मेरा फेवरेट स्टार्टअप Sukoon.com था। आई वुड सिंपली पिक माई फोन, अब भैया ये खराब हो गया, ये भेज दो। बंदा बंदा आके मुझसे बहस नहीं करेगा, ये इतने का होगा, ये इतने का, मुझे पता है 600 रुपए मैंने देने हैं उसको, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। वो सर्विस खत्म हो गई, आई कैन नो लॉन्गर यूज इट। ठीक, हालांकि उनको अच्छी फंडिंग मिली थी उस जमाने में, दे हैड द हाईएस्ट, आई थिंक इन 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब ये जो फाउंडर्स थे, ये अच्छे बच्चे थे, इन्होंने एक स्टार्टअप खोला, ये इन्होंने काम करना शुरू किया। स्टार्टअप बंद करना इज अ हाईली डिमोरलाइजिंग थिंग। क्या ये दोबारा जॉब पे चले जाएंगे? क्या ये उस जॉब में अपने बॉस की जी हुजूरी कर पाएंगे? क्या वे वो कर पाएंगे कि पंच इन पंच आउट, 9 to 5? ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल आ जाता है। एक करंट स्टार्टअप के लिए भी मेंटल हेल्थ का सवाल आ जाता है। व्हेन यू आर एट मिड एज लाइक मी and you have responsibilities, you have a kitchen to run, and that kitchen needs a hefty amount. Your daughter's fee needs hefty amount. अब उसको नया सेलफोन चाहिए, अब उसको नया टैबलेट चाहिए, उसको ये चीज चाहिए, उसको वो चीज चाहिए, ठीक है ना? तो यू हैव टू अरेंज फंड। अब वो फंड आपको कहाँ से मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, आइदर आप, वही वाली बात है कि उसको शट डाउन करके आप जॉब के अंदर चले जाएंगे। तो कमिंग अप विद अ स्टार्टअप आइडिया, वेरी गुड। सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे, जो कि आप बात करिए 5 साल, तो वो 5 साल तो हमें अभी तक किसी स्टार्टअप के नजर नहीं आए। Right. Thank you. So I think next question जो है हमारा वो इसी हवाले से है from Umar Saab on the general state of sustainability of startups and what should be done to make them more sustainable, and role of NIC Karachi again in making these startups more sustainable. तो एजाज ने ऐसा जबरदस्त सेगवे दिया है इसके लिए कि मैंने कहा शायद एजाज को ब्रीफ कर दिया था किसी ने कि यही कहना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आना है। तो देखें, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स। सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ स्टार्टअप यानी अपने पैरों पे स्टार्टअप खुद खड़ा हो जाए और सेल्फ फंडेड अपना काम कर सके, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी मेरी एक स्टार्टअप से मुलाकात हुई है जो 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं, काफी पैसे उन्होंने लगा दिए हैं, टेक्नोलॉजी भी बना ली है, प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया है, 4-5 हजार कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं।
चीजें हो रही हैं, मगर रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रही। और जब तक ये रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी, कोई भी इन्वेस्टर अगर आएगा वो देखेगा और बोलेगा भाई तुम पैसे कैसे कमाओगे, कब कमाओगे, मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, मगर कभी ना कभी तो मुझे पैसे चाहिए होंगे अपने वापस। अगर मैं आज पैसे डालता हूँ स्टार्टअप में, तो मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ कि चले जी, अगर आप मेरे साथ इस रास्ते पे चलेंगे अगले 4 साल तक, तो मैं आपके पैसे ना सिर्फ लौटाऊंगा, मगर उसको चंद गुना करके आपको वापस करूंगा। ये एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की निशानी होती है। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं इस उम्मीद से कि हम इन्वेस्टर से पैसे लेंगे और हम काम करेंगे। अब एक जमाना था 2019-20 कोविड से पहले, जब इन्वेस्टर जो है उसको एक काफी यूफोरिया चल रहा था कि यार स्टार्टअप्स में पैसे डालो, पैसे तो बन ही जाएंगे कहीं ना कहीं। और इन्वेस्टर को ये भी पता होता है कि भाई एक बहुत बड़ा परसेंटेज है स्टार्टअप्स का जो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, उनका बिजनेस मॉडल नहीं चलता है, उनके फाउंडर की शादियां हो जाती हैं, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो कहीं और मूव हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट कर जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। तो स्टार्टअप्स के खत्म होने के बहुत सारे वजूहात हैं। अब उन वजूहात को अगर आपने काउंटर करना है, तो एक सॉलिड बिजनेस मॉडल, एक जबरदस्त किस्म की टीम जो बिल्कुल कमिटेड हो, फोकस्ड हो, तैयार हो स्टार्टअप को वक्त देने के लिए, अपना खून पसीना जरासीम सब जो है ना स्टार्टअप को देना जरूरी होता है। और अगर ये चीजें, ये फुल कमिटमेंट और इन्वेस्टर के पैसे भी मिल जाएं, तब भी स्टार्टअप के फेल होने के चांसेस होते हैं। अभी 1-2 साल पहले दुबई में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन यूनिकॉर्न लेवल पे पहुंचा हुआ था, यानी $1 बिलियन वैल्यूएशन पे पहुंचा हुआ था, वो बंद हो गया। एंड इट वाज अ शॉक, बिकॉज लोग उस स्टार्टअप को देख रहे थे एज अ सक्सेस स्टोरी, और वो अचानक उन्होंने एक दिन बिजनेस पे ताला लगाया और उनके पता नहीं कितने 150-200 एम्प्लॉइज थे, वो सब घर गए एक दिन में, क्योंकि पैसे खत्म हो गए और इन्वेस्टर ने हाथ उठा लिए कि भाई अब मैं और पैसे नहीं डाल सकता। एक और बड़ा मशहूर स्टार्टअप है, ग्लोबल स्टार्टअप, जिसका नाम है वीवर्क। वीवर्क का एक जमाने में वैल्यूएशन $60 बिलियन पे पहुंच गया था। $60 बिलियन पाकिस्तान के नेशनल डेट से ज्यादा है, ठीक है ना, इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी। मगर उस स्टार्टअप में मसला ये था कि जितनी वो रेवेन्यू बढ़ा रहे थे, उसी हिसाब से, बल्कि उस हिसाब से ज्यादा उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी। तो जितनी वो रेवेन्यू बढ़ाते थे, जितनी कमाई बढ़ाते थे, उनका नुकसान में इजाफा होता जाता था। अब ये तो सस्टेनेबल नहीं है ना, कोई भी बिजनेस इस तरह तो नहीं चल सकता। जब आपका बिजनेस छोटा होता है तो आप कहते हैं चलो यार महीने के मेरे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए जेब से लग रहे हैं, मगर मैं कुछ बना रहा हूं। मगर वो अगर बिजनेस लाखों रुपए पे चला गया या करोड़ों पे चला गया, जो आप चाहते हैं कि जाए, और उसमें मुनाफे के बजाय नुकसान आपका बढ़ना शुरू हो गया, आप कब तक इसको सपोर्ट करेंगे? आप भी कहेंगे यार मैं घर तो नहीं बेच सकता अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए, क्योंकि मेरी बीवी जो है मुझे जान से मार देगी, या मेरे बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि मैं फीस के पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो ये जो एजाज का पॉइंट था कि आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर चलें आपने टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, आपने $1 लाख टेक्नोलॉजी बिल्ड करने पे लगा दिए, अब उसके बाद और पैसे लग नहीं रहे, तो आपकी जो एक एक ट्रांजैक्शन हो रही है उस पर आपको कम से कम मुनाफा बनना चाहिए, कम से कम ब्रेक इवन पे आपको आना चाहिए, यानी जहां पे जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर रहे हैं। अगर आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस ही बात है ना। अजीब सी बात यह कि हमारे बच्चों को ज्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती है, जो एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो अदील ने बात की कि हम एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, मैं सर आपको सलूट करता हूँ। ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर इन पाकिस्तान। बच्चों को आप सिखाएं बचपन से कि पैसे की अहमियत क्या चीज होती है, पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, खर्च करना तो
हर किसी को आता है, और खर्च करने के तो 1000 एवेन्यूज हैं। आपने 1.5 लाख रुपए कमाए, जाके आप आईफोन ले लें, बल्कि आईफोन भी नहीं लें, आप ऐसा करें सैमसंग ले लें। आपने 2.5 लाख रुपए कमाए तो आप आईफोन ले लें, 10 लाख रुपए कमाए तो गाड़ी ले लें छोटी वाली, अगर 50 लाख कमाए तो बड़ी वाली गाड़ी ले लें। खर्च करने के एवेन्यूज बहुत हैं, मगर कमाना और इस तरह कमाना कि आपका उसमें, वो कहते हैं ना, मुनाफे में नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चीज जो है बच्चों को नहीं सिखाई जा रही है। तो आई डू नो कि कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ स्कूल्स हैं जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटीज चल रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब फॉर एग्जांपल निक्सर का कोई बच्चा जो है मुझे लिंक्डइन पे ऐड करता है और ये कहता है कि आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट फॉर निक्सर फाइनेंशियल। मैं कहता हूँ भाई बेहतरीन, मतलब एक 17 साल का बच्चा या बच्ची, उसको इतनी समझ है कि भाई मुझे ये बिजनेस लेके बिल्ड करना है, ये पैसे मेरे जागीर में मुझे नहीं मिले हैं, ये किसी की अमानत है। अब ये अगर आप लोग सोचना शुरू कर देना कि मैं जो इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ ये एक अमानत है, इसमें मैं इस पैसों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता हूँ, इसके साथ मैं फेंका फेंकी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे मुझे मतलब फ्री फंड में नहीं मिले हुए, इसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं एनआईसी पे। हमारी जो सबसे छोटी और सबसे प्यारी जो स्टार्टअप की फाउंडर है, उसका नाम ईमान है। शी इज लाइक 10 years old और माशाल्लाह से अभी जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 190 ममालिक के डेस्क के ऊपर क्लाइमेट के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, उस पे पहली तस्वीर ग्लोबल 9 या 12 बच्चों की तस्वीर उस पर लगाई है जो अपने 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 ममालिक के क्लाइमेट चेंज के चैंपियंस हैं, उसमें पहली तस्वीर ईमान की है फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि आप मेरे कंधे के पीछे एक छोटी सी गुड़िया देख रहे होंगे, लोग हंसते हैं जब मेरे दफ्तर आते हैं कि यार आप तो गुड़ियों के साथ खेलते हैं। मैं उनको ये समझाता हूँ कि ये जो ईमान है ये गुड़ियाएं हाथ से बनाती है, और जो जो मतलब खुद तो नहीं बनाती है, बट यू नो शी बाइज दीज डॉल्स फ्रॉम वुमेन हु मेक देम, और उसको वो बेचती है आगे ताकि वो जो पैसे मिले हैं उससे क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस बढ़ाएं। तो एक तरफ जो आपकी इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास आमदनी का कोई तरीका नहीं है, वो उनकी भी मदद कर रही है, और साथ साथ पाकिस्तान का एक एम्बेसडर बनती जा रही है एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए। ये काम है एनआईसी। एनआईसी का काम है अपने फाउंडर्स को एक प्लेटफॉर्म देना, उनको एक विजिबिलिटी देना, उनको एक इकोसिस्टम के अंदर जगह देना, ताकि वो अपना जो मैसेज है, जो वो काम करना चाह रहे हैं, वो विजिबल हो जाए। हमारी टीम ने, जो ये टीम इस वक्त आपके साथ रात के 6:30 बजे लगी पड़ी हुई है, ये टीम पिछले 3-4 महीनों में बहुत बड़े बड़े सोशल इश्यूज के ऊपर हमने हैकाथॉन्स किए हैं। हमने बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन स्पेसिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा हैकाथॉन किया है। हमने वुमेन इन टेक्नोलॉजी, जो बिल्ड बाय हर का जो हैकाथॉन है, जो सेकंड टाइम हमने किया है अभी, इसमें 800 लड़कियों ने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 200 टीमों ने 3 हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए ऑनलाइन। हमारे मेंटोर्स और एडवाइजर्स का मतलब दिमाग का दही बना दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 48 घंटे में मिल के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, डिजाइन किए हैं और पिच किए हैं, और उसमें से माशाल्लाह से 3 ने बहुत बड़े बड़े प्राइजेस जीते हैं फ्रॉम द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड द यूएस कॉन्सुलेट एंड द एशिया फाउंडेशन। तो ये काम है एनआईसीज का कि अपने स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म दें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको एडवाइस करें, उनको गाइड करें कि भाई आप जो बिजनेस बना रहे हैं वो एक बिजनेस है, वो एक मजाक नहीं है, इट्स अ सीरियस कमिटमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, उन सबको मैं ये कहूंगा कि आप जरूर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, जरूर आए,
क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो जनरेशन जेड के अंदर, ये जो बच्चे हैं ना जो इस वक्त 18 साल 20 साल 22 साल, ये एक अलग नस्ल के जानवर हैं। इनके लिए प्लैनेट कम्स फर्स्ट, इनके लिए पर्पस कम्स सेकंड, इनके लिए पीपल कम थर्ड एंड प्रॉफिट कम्स फोर्थ. Profit is important because without profit you can't sustain the people and the purpose and the planet. But अगर आप काम सही करें, अपना बिजनेस मॉडल सही बनाएं, अपनी प्लानिंग सही एग्जीक्यूट करें और उसको लेके मेंटर्स और एडवाइजर्स के साथ काम करें, तो ये प्रॉफिट खुद से आएगा अगर आप सही फैसले लेंगे. और देखें, कोई भी पैदा नहीं होता है इलॉन मस्क, कोई भी पैदा नहीं होता है मार्क जकरबर्ग, ये या जेफ बेजोस. These people have made something by training, by practice, by doing. आप जरूर करें. और मैं आपको ये भी कहूंगा कि देखिए, फेलियर से डरे मत. हमारे कल्चर में फेलियर को बहुत बुरी नजर से देखा जाता है. ओ हाय, इसका तो धंधा बंद हो गया, इसको तो दुकान भी नहीं चलानी आती, इसका तो ठेला बंद हो गया, इसका तो, अरे यार लानत भेजे इनके ऊपर. आपने एक स्टार्टअप करना है, फेल हो गया, बंद हो गया, पैसे खत्म हो गए, दूसरा करें, तीसरा करें, चौथा करें. कोई, किसी ने नहीं आपको कुछ कहना है. आपके फेलियर्स को हम सेलिब्रेट करेंगे, उनकी लर्निंग्स हम शेयर करेंगे लोगों के साथ. आपकी लर्निंग्स होंगी, आप ग्रो करेंगे, आप मैच्योर करेंगे और आप एक इन्वेस्टेबल फाउंडर बनेंगे, यानी जिसके अंदर लोग पैसे डालने के लिए तैयार हों. और एक पॉइंट आएगा जब लोग आपके पीछे भाग रहे होंगे कि भाई मुझसे पैसे ले ले, और आप कह रहे होंगे नहीं यार, तुम्हारा जो अप्रोच है, तुम्हारी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, वो मेरे बस की बात नहीं है. हम तो एथिकल इन्वेस्टिंग करते हैं, हम तो फलाना करते हैं, हम तो ये प्लैनेट फर्स्ट. आपकी कंपनी तो सबसे बड़े पोल्यूशन के उसमें आती है, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते. सो प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर. एम्ब्रेस फेलियर. फेलियर is not final. Failure is not fatal. It only depends on you कि आप उस फेलियर को लेके, उसकी लर्निंग्स को लेके आगे कैसे बढ़ते हैं. इसलिए हम कहते हैं कदम बढ़ाओ, पहला कदम लो. हमारा जो फेवरेट हैशटैग है, इट्स कॉल्ड स्टार्ट समथिंग. शुरू तो करो यार, दुनिया तुम्हारे साथ आएगी, बट शुरू तो करो. सर, इसमें आपकी बात को एक ऐड करूंगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक टेंशन ये है कि फेलियर एक अलग चीज है और लूजिंग एक अलग चीज है. हम लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं. जी जी बिल्कुल. सो सॉरी, मैंने शायद बहुत ज्यादा बोल लिया, बट आई एम अ फर्म बिलीवर कि ये जनरेशन जेड जो है ना, ये हमारे प्लेनेट को और हमको बचाएगा. तो एक बड़ी सैड बात है, बट रियलिटी ये है कि ये बच्चे जितने फोकस्ड है ना, जितने ड्रिवन हैं, जितने मोटिवेटेड हैं, जितने कमिटेड हैं, हमारे जनरेशन में, उनकी उम्र पे हम तो नहीं थे भाई. हम तो गली में क्रिकेट खेल रहे होते थे 6-6 घंटे. स्कूल से वापस आए, गली में निकल गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के बाद वापस अंदर आना है. हमारे पास ना कोई कुछ पता था, ना कोई परवाह थी. पता है होमवर्क है, होमवर्क शाम को करना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, 9 बजे का खबरनामा बाप के साथ बैठ के देखना है और जाके सो जाना है. मगर इन बच्चों के पास टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस है, और सबसे बड़ी बात एक ड्राइव है कुछ करने के लिए. तो मैं आपसे कहूंगा जरूर करें, कदम उठाएं, हम सब आपके साथ हैं. That's amazing. So since you gave example of Elon Musk, तो मैं आज अक्सर कोई बता रही थी ऑफिस में that I was reading this news that he is now world's first trillionaire. तो बिलियन पीछे रह गया, अब ट्रिलियन की जो रेस है उस पे लगना है. नहीं अभी नहीं. He's not a trillionaire yet. His company has joined the trillion. His company has joined the $1 trillion. No, it said that he's the world's first trillionaire now. So I was like, okay. His value is okay. $230 billion. तो उसने, which is now more than Jeff Bezos and Mark Zuckerberg. तो उसने जेफ बेजोस को एक ट्वीट किया था जिसमें सिल्वर मेडल उसने उसको भेजा था कि वेल प्लेड बट योर सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड बिलोंग्स टू मी. तो ये देखें, जब इतने बड़े आप हो जाते हैं तो आप अपनी ईगो पे खेल सकते हैं. वो शायद ट्रिलियनियर बन भी जाएगा,
मगर अभी उसकी कंपनी $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर गई है, टेस्ला। Yeah. So we've been joined by Zartaj Ahmed, CEO and founder of Curiosity, again, NIC incubated startup, and she runs LinkedIn for students. So thank you so much, Zartaj. I would just, my next question is for Zora, but unke baad you can also answer the same question, which is the pluses and minuses she saw during her journey in the ecosystem and the potential that Zora you see in the youth generally. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और बहुत अब इस वक्त आई थिंक आई एम गोइंग टू फंबल अ बिट इसलिए कि आई एम गोइंग टू फॉल शॉर्ट अ फ्यू वर्ड्स आल्सो इसलिए कि बड़ा अच्छा लग रहा है कन्वर्सेशन सुन के और उमर साहब, एजाज साहब, अदील, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, हुमा, सो एवरीवन हियर। बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि बेसिकली जो मेंटरिंग हब का फोर्टे मिशन प्लान रहा है फॉर द पास्ट 5-6 years within Pakistan has been learning and development, entrepreneurial mindset also, but coming along, moving the lines of mental health, जैसे अभी इजाज साहब ने कहा, emotional intelligence, regulation and what not. So इजाज साहब से भी सुन के अच्छा लगा कि मेंटल हेल्थ के बारे में वाकई सोचा जा रहा है, और उमर साहब की बात सुन के और भी अच्छा इसलिए लगा कि this is where we as a nation and as a community, I'm so sure आप सब agree करेंगे that we need to come to a standpoint where it is not just a race where everybody has to start and have to have that cool, जैसे इजाज साहब ने बोला ना कि स्टार्टअप होना जरूरी है, नहीं, it has to start with structured learning, it has to start with a proper, जिसको हम कह रहे हैं, उमर साहब ने कहा कि फाइनेंशियल्स पढ़ना, इजाज साहब ने जिक्र किया, और अदील और हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, स्टार्टअप्स को जब मेंटोर करने का मौका मिलता है, जो भी मिलता है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनको ये समझाया जाए कि there has to be a concept behind your step forward. सिर्फ इन्वेस्टर तक पहुंच जाना जीत पूरी नहीं हो सकती, सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे ले आना जीत पूरी नहीं हो सकती. There has to be a very good, well sorted homework. और जिस तरीके से हम जनरली एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व, आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे, हम सबको बिजनेस स्कूल में पढ़ाया गया है कि जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व जो है वो सीखें और सिखाएं, उसी तरह हम ये समझते हैं कि बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि बिजनेस का लाइफ साइकिल कर्व क्या होता है बेटा, हाउ डज इट एक्चुअली फॉल एंड वेयर डज इट फॉल, और अगर होता है तो उसको सस्टेनेबिलिटी वाली बहुत प्यारी बात जो आप सबने की कि सस्टेनेबिलिटी किस तरह दी जा सकती है. उसी के साथ साथ हम एक और स्टैंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि एज अ कम्युनिटी आई फील सब लोग, आप जैसे लोग माशाल्लाह विद इन योर own capacities and levels, इतना सारा काम हो रहा है, बट स्टिल जो एक चीज रह जाती है एज अ गैप आई फील, वो ये हो जाता है कि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कह रहे हैं कि जैसे अभी उमर साहब ने भी जिक्र किया कि आज का जो बच्चा है उसका एक्सेस है टू दिस क्रेजी इंफॉर्मेशन दैट्स कमिंग फ्रॉम ऑल nicks and corners, और वो सारा कुछ बन के वही सब जो है इवॉल्व कर जाता है सना प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को लेके, और आप सब अग्री करेंगे कि वो एक बॉगल्ड सेंस ऑफ प्रेजेंस हो जाता है, जिसके बाद जल्दी में रश में जाके हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स आते चले जा रहे हैं, लेकिन हाँ जहाँ फुकदान और गैप आ रहा है वहां पे इसी तरीके के लोगों का आप हो गए, हम हो गए माशाल्लाह, जिनकी एक्सपीरियंसेस हैं, वो नॉलेज फॉर्म में ट्रिकल डाउन होनी जरूरी है until the last level, and I'm so sure आप सब लोग अग्री करेंगे. उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ और माइंडफुलनेस का मैं यहाँ जरूर चाहूंगी कि मैं जिक्र करूं कि यहाँ पे जितनी बातें अब तक हुई हैं वो सब हिंट कर रही थी हमें सना माइंडफुलनेस की तरफ, कि हम इस वक्त अपना प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज करके, प्रेजेंट को देख के, फ्यूचर की फियर को जाने दें और सोच के एक कैलकुलेटेड डिसीजन लें, और मेंटोर्स जैसे NIC मौजूद है या और लोग मौजूद है, उन सबको एक्सेस करें. हमारे यहाँ कम्युनिटी में खौफ कम्युनिटी के अंदर भी है कि वो रीच आउट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा सिचुएशन हो जाए. मेंटोर्स के मौजूद रहने के बावजूद रीच आउट जो है लोगों का वो कम है. तो मेरे ख्याल से on the whole we all need to encourage and keep promoting the fact that this has to come down as a knowledge book and a knowledge box to people, especially who are working on startups. Come with a solid plan, जैसे अभी उमर ने भी कहा
इजाज ने भी कहा, एंड आई एम श्योर आप सब अग्री करेंगे कि सॉलिड प्लान वर्किंग के साथ पैसे जरूर बनाए, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर elements that are attached to the business that have to be taken care of. और अब जहां सुना जाता था, सोचा जाता था सना के एमपी जैसे लफ्ज और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे लफ्ज जो थे वो कभी कभार इस्तेमाल होते थे एजाज साहब, अब तो मुझे लगता है आप सब लोग भी करेंगे कि इनके बगैर कोई स्टार्टअप जो है वो एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी मॉडल का बिजनेस भी शुरू करे तो वो बहुत बड़ी गलती है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी, आप लोगों के व्यूज सुन के थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड मेजरिंग हब्स ऑन माइंडफुलनेस, जो कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के साथ और इमोशनल मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और साथ साथ इसी तरह कोशिश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कि हम उसको उसी तरह लेके जाएं। इसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योर और उसकी एंटरप्रेन्योरशिप से डिफरेंट है। आप सब लोग अग्री करेंगे क्योंकि हम सब उस इकोसिस्टम का पार्ट है। बच्चों में, इवन वो लोग जो स्टार्टअप्स चला रहे हैं, उनमें इस चीज का डिफरेंस और क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट में सना, वो भी लाने की बहुत जरूरत है। और जो आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, दिस has to go beyond just one session, and we have to actually tell our people again and again, क्योंकि हम सब जानते हैं ना नेचर अपना as a community, that we have to be reminded of what is to be done now. Post COVID चीजें बदल गई हैं, so but I'm very happy to fairly hear out all of you, especially to know the fact that we all come from the same space and we all feel the same way quite similarly for the progression. अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमारे यहाँ मोस्टली एक बंदे को कोई विजन आ जाता है, कोई आइडिया आ जाता है, और जिसकी बेस पे वो डेवलपर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करने लगता है। एक अलमिया हमारे यहाँ है टू रीच एट द टॉप, टू बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी। Yes. आई वर्क एज अ क्रिएटिव बिजनेस कंसल्टेंट एज वेल। तो अभी रिसेंटली मैं लोगों को ये मशवरा दे चुका हूँ कि ब्रिंग अ सीईओ ऑन टॉप ऑफ यू। आप अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू कैन बी अ सीसीओ और अ सीटीओ एंड यू डू दैट, लेकिन जहां तक बिजनेस फैलाने की बात है तो उसके लिए ब्रिंग अ सीईओ ओवर यू, सुपर, और अपने साथ लेकर आओ। मतलब हमारे यहाँ किसी को ऊपर लाने से थोड़ा सा मसला है लोगों को। बिल्कुल है। आइडिया शेयर करते हुए डरते हैं सर कि पता नहीं अगर बोल देंगे तो पता नहीं बोले कि चला जाएगा, तो वही मैं और आपने बड़ी प्यारी बात की यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग वैल्यू टू माय थॉट, कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं उस इकोसिस्टम का पार्ट हम सब हैं, और माशाल्लाह आप सब लोगों की एक्सपीरियंसेस हम सब के कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर जाते। तो हमेशा मेरा तो यही सवाल होता है कि collaborative working has to come into action. We have to come together. If an IC is doing a job, I feel we all need to reach out to each other and say, "Yeah, we're all talking the kind of the same. We all have the same mission for the community." Because हम लोगों को अपने वक्तों पे ये नहीं मिला था ना, ये सपोर्ट नहीं था, ये इकोसिस्टम नहीं था, लोगों का इतना मोटिवेशन नहीं था। लेकिन अब जब मौजूद है तो फिर इसको एक जगह ला के और फिर फुल फोर्स में बार बार रिपल इफेक्ट के तौर पे दिया जाए टू द कम्युनिटी। आई फील वो एजुकेशन और नॉलेज जो है would go a long way, you feel? इंशाल्लाह। मेरे हल्का अहबाब में कोई स्टार्टअप फाउंडर नहीं है दोस्तों के अंदर, ठीक है। whenever I have a problem, मेरे पास उमर मौजूद है, मेरे पास असफर मौजूद है, आई हैव दिस पीपल जहाँ पे मैं जाके मशवरा कर सकता हूँ, इवन जाके रो सकता हूँ, यार मेरे साथ ये ब्लंडर हो गया है, मुझे अब क्या कंधा मिल करूं? जाता है। हाँ, हाँ, तो एनआईसी बिल्कुल मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उस हवाले से कि बिल्कुल आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जहाँ पे जाके आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और वो जी, प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं। बिल्कुल ट्रू, सो ट्रू, बिल्कुल ट्रू, वाकई। सो या सना, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। आई थिंक हमने बहुत सारे पैशनेट लोग जो हैं इस पैनल में बिठा दिए हैं, सो फॉर इस टाइम थोड़ा सा जो है हमें मैनेज करना होगा। So, Sartaj, question for you since you run LinkedIn for Students, and अगला सवाल मतलब जो पिछला सवाल था and अगला सवाल is for students जो जिनको beginners level पे या school level पे entrepreneurship पढ़ाने की बात की जा रही है। So, what do you think के is there even a level of understanding in students, उनको entrepreneurship समझ आती है stage पे, and
मतलब are they willing to accept this change जो I think पहले नहीं था, because जो उमर साहब की भी बात हो रही थी, even like when we were growing up, तो डॉक्टर, engineer, astronaut यही professions थे, मतलब it was not something कि you know startup होगा या business करेंगे या something of that sort. So yeah. Yeah, Assalamu alaikum ji. Thank you very much. I was enjoying the discussion jo ho rahi thi. So very quickly, I am Zartaj Ahmed and I am the CEO and co-founder of Curiosity Net. I think the discussion is something that is very close to my heart, working with the youth and empowering the youth. Entrepreneurship, I always take it as mindset. So entrepreneurial mindset hai that I feel is important to be developed, because entrepreneurial mindset के साथ आप बहुत सारी skills associate करते हैं. I have been in the education space for more than 10 years now. After completing my education, I was in the corporate sector. But उसके बाद I came back to the education space thinking कि हमारे जैसे professionals की ज़रूरत है to disrupt the way we teach, we train our students or the upcoming generations. So I have been in the education space for quite some time, meeting with parents and students. And I'm a trainer for kids when it comes to high technology, advanced technology courses like robotics and STEM education. मेरा जितना experience रहा है और जो मेरी realization है वो ये है कि ये जो बच्चे हैं आजकल के, इनको तो मैं I'm a mother as well. So I have a 16-year-old and a 13-year-old, difficult ages, right? और उनके साथ मैं यही कहती हूँ कि बेटा मैं तो मुझे लगता है आपको इस एज में PhD भी करा सकती हूँ, आपका वो वाला माशाल्लाह ब्रेन है. It really depends के where do you put it to use. My son is a gamer and he loves to play games, but at the same time, and he's very passionate and very good on the math side, engineering side. He's doing O levels. उसको मैंने पिछले महीने, and I want to share this example really quickly rather than talking about other things. I think बाकी points बहुत अच्छे से cover हो गए. And this is something that I've experienced firsthand. My son is more towards math and science and STEM naturally. And I gave him a challenge. He participated in a foreign program, a US-based career exploration program, mechanical engineering ka tha, sab online tha. And mechanical engineering and architecture. He explored that. He was given projects that were real life projects जो customers को देते हैं, pure engineering के लोग जो करते हैं काम, building design, bicycle का कोई part बनाना है, mold design, 3D modeling, बिल्कुल state of the art industry standard software पे. He did that because उसका inclination था. थोड़े दिन के बाद Unilever का startup early competition announce हुआ. And I was like कि तुमने वो जो बाइसिकल का पार्ट बनाया था ना उसमें, मैंने कहा treat it like a startup product. Now let's start thinking about it. If you have to manufacture it, how would you make a business model around it? मैंने उसकी बकायदा, वो सारे साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ता है, उसके पास कोई अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ही नहीं है. Due to my trainings in all these entrepreneurship backgrounds, in these programs, I was able to learn a lot. And I'm a software engineer, by the way. I'm a tech person. जो कुछ मैंने सीखा था मैंने उसको सिखाया, वहां पे बूट कैंप्स हुए, ट्रेनिंग्स हुई. And guess what? Among university students, उसकी team, where one of his friends was based in Malaysia, दो यहाँ पे स्कूल में, they won the first position. Best idea across, and he could not believe it, I could not believe it. So हमारा ये जो perception होता है कि हम स्कूल में अगर हम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो हम entrepreneurship नहीं पढ़ सकते, हम अगर टेक्निकल फील्ड में हैं तो हम entrepreneurship नहीं पढ़ सकते. This was a misconception I had, and I was corrected when I joined these entrepreneurship programs. And Nick की जो support है, I think Nick is not only a platform, it's a complete support system that goes with you. It holds your hand throughout the journey. And I've graduated from cohort 5, but I still feel like, I am always welcomed. मैं आज भी वहां पे थी. And the way I received this guidance, so it's very important to become a part of such initiatives and platforms and programs. ये मेरा message होता है जब भी मैं किसी को करती हूँ. So I think youth के लिए, there's no second thoughts on it. कि entrepreneurship is the way to go.
It develops a lot of skills जो हम बच्चों में develop करना चाहते हैं. Problem solving आपको startup से ज़्यादा कहीं सीख ही नहीं सकते आप. If you have a startup, आप हर तरह के problem से deal कर रहे होते हैं. So that would be my message. Go for it. Try it out. Just like Umar mentioned, आप उसे try करें. आप school से निकलें तो आपके पास एक startup idea होना चाहिए. O level या metric के certificate के साथ एक startup idea होना चाहिए that you're ready to roll out. आप यूनिवर्सिटी में पहुंचने का इंतजार ना करें, that is very late. आप फेल हो चुके हो 2-3 दफा, and I completely agree with Umar on that. We're scared of failing और हम ये fear of failure अपने बच्चों में डाल देते हैं. We as adults, we do that, unfortunately, and we have to teach them not to be afraid of failing, but consider it a learning experience. वो है ना कि जी, either you will fail or you will learn, either you will succeed or you will learn, right? So it's that. So I will end with this. Entrepreneurship is the way to go for anybody, no matter what education you're pursuing. I'm a big example. I struggle with finances and everything. I've learned it, and I'm ready to learn more. And life is a lifelong learning process. I think it's all about learning. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you so much, Zartaj. So over to Huma. Huma, in continuation of what Zartaj said, कि society and acceptance, and हम अक्सर सुना है कि between करें कि मतलब हमारी एजुकेशन सेक्टर जो है उनको क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि ये जो गैप है वो कम होता जाए. हुमा, आपका माइक ऑफ है. You're on mute. Thank you very much, and it was an amazing experience to learn every one of you. Pace College जो है वो it's the first entrepreneurship college of Pakistan जिसने जो है वो ये सारी की सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, तो हम उसको मेन स्ट्रीम के अंदर entrepreneurship को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर ऑलरेडी आ गए हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहती हूँ यहाँ पर अपने तमाम स्टूडेंट्स को भी, और जब हम पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं उस तरफ भी, कि जो लोग हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं दे आर रिबेलियंस. क्योंकि हमारे यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी माँ उसको ये कहना शुरू करती है मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, वो पायलट बनेगा. तो वो सारे के सारे ख्वाब जो पेरेंट्स ने अपने लिए देखे होते हैं, दे वांट देयर किड्स टू फुलफिल देम. And this is a natural trend in our society. Even कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं और उनके 5-6 बच्चे हैं, I've seen those families, मैंने खुद देखी हैं वो फैमिलीज, कि अगर उनके 5 बच्चे हैं तो वो 5 के 5 डॉक्टर्स हैं, अगर 4 हैं तो वो 4 के 4 इंजीनियर्स हैं. तो उसमें अगर कोई एक खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि ना जी मैंने तो जो है वो दाना मनम और मैंने जाना है अपना बिजनेस करने के लिए, तो वो बिल्कुल उसी तरह से जब वो वाला ट्रेंड होता था कि जब एक कहता था कि जी मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है, तो पसंद का प्रोफेशन और पसंद की शादी ऑप्ट करना हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल काम है. तो ये जो जितने स्टार्टअप्स हमारे पास बैठे हुए हैं, दे ऑल आर रिबेलियंस, दे ऑल आर most daring people in their ecosystem and in their community. Yes, जो गैप है हमारे पास entrepreneurship और एकेडेमिया का और मार्केट का, इट इज वेरी मच देयर. लेकिन जो आइडियाज अब आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, सो गुड टू हेयर टू Zartaj कि कॉर्पोरेट सेक्टर से निकलकर इट्स अ बिग डिसीजन टू हैव योर सेकंड इनिंग विद द स्टार्टअप. क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से निकलकर एक बंदा जो है वो अपने आप को बहुत ऊपर देखता है, सीईओ देखता है और बहुत सारी जगहों पे देखता है, बट गोइंग इनटू अ स्टार्टअप एंड स्पेशली वर्किंग विद द किड्स, दैट्स सर्टेनली अमेजिंग. The Junior CEO Challenge is certainly an effort to introduce the ideas of entrepreneurship and continue what Zartaj what Zartaj said कि जब आपका एक बच्चा स्कूल से निकले तो वो एक स्टार्टअप आइडिया के साथ निकले. सो दिस इज आवर स्मॉल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्कूल कि ग्रेड 8, 9 और 10 के और ओ लेवल्स के बच्चों को जब हम ओरिएंटेशन देने के लिए गए, तो लिटरली
वो स्टूडेंट्स जो थे वो ब्लैंक थे कि ये किस तरह की बात हमसे करने के लिए आ गए हैं। कोई डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता, कोई पेंटिंग का कॉन्टेस्ट होता, कोई कुछ और चीज होती, कोई रोबोटिक्स के ऊपर हम काम कर रहे होते, तो एक 10-15 दिन तो हमें लगे उन बच्चों को सिर्फ सेंसिटाइज करवाने के अंदर कि हाँ ये भी कोई कॉन्टेस्ट है। आइडिया को सोचना भी अपने आप में जो है वो आपके माइंड की, आपकी थिंकिंग की, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एक एक्सरसाइज है। तो वहां तक उनको लाने में ही हमें काफी ज्यादा जो है वो टाइम लगा। नदील कुड रिलेट टू इट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। बट नाउ जब उनको हमने बताया, उनको उनको बहुत सारी एग्जांपल्स दिखाई उनको बच्चों को, so now they are so enthusiastic that they are going to take part in this contest. और दिस इज आवर एफर्ट के ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डे को पेस इस तरह से जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा है, टू ब्रिंग अप दोज who are going to be the future of entrepreneurship in Pakistan, and the part of this paradigm shift. And I'm just hope so कि I'm very much hoping कि वो बैंड वैगन नहीं होगा। और जब ये बच्चे जो इस वक्त 8, 9, 10 और O levels के अंदर हैं, when they will be there, as Umar said कि ये वो बच्चे हैं कि जिनके पास gadgets हैं, जिनके पास technologies हैं, it's just that they need a small push. So we are giving them a small push with the help of NIC. Ijaz is here, and it's really great to see Ijaz and Zartaj on this forum, on this panel. And yes, Sapoon.com मुझे बहुत याद आता है, मेरे बड़े काम किए हैं सपून ने भी मुझे रिमाइंड कराया उसको। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे पास और आने चाहिए हैं। और सिर्फ एक रिक्वेस्ट NIC से और उमर से कि जो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, तो जब हम बहुत सारे हैकाथॉन्स कर रहे हैं ना, तो एक सक्सेस स्टोरीज का भी हैकाथॉन करें उमर, जो कहीं से भी इंक्यूबेट हुए हैं, जो कराची के अंदर हैं, जो शायद NIC से इंक्यूबेट हुए हैं। दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी गुड पुश टू द चिल्ड्रन जिनको हम आगे 5 years डाउन द रोड देख रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि एकेडेमिया इज सर्टेनली देयर टू हेल्प NIC आउट। वी आर हेयर कि हम बता सकें लोगों को कि व्हाट एम्पैथी इज, किस तरह से जो है वो आप जब आते हैं तो व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज। कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल तक आते हैं, कहीं ना कहीं ग्रूमिंग लैक करती है, कहीं ना कहीं ये वाली चीजें उनके अंदर लैक करती हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट, एक ईमेल किस तरह से लिखना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। सो वी आर हियर, एकेडेमिया इज देयर टू हेल्प NIC कराची आउट कि जब हमारे पास वो लोग आए तो वो वाला हिसाब किताब ना हो जो क्रिकेट टीम का होता है कि मैन ऑफ द मैच लेने के बाद लोग भाग जाते हैं। They has to be there to face the camera, and they has to be there to face the press. That's wonderful. So, any closing comments, Adil? And then I think we can end the session. अगर आप लोगों की इजाजत हो सना, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी अदील के बाद। अदील आप प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। एक छोटी सी चीज, आई वुड रियली वांट दिस टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। आवाज ब्रेक हो गई थी इंटरनेट इशू की वजह से। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सना? Yeah, so I was just asking for your closing comment, but I think Zora has to add something before we end. लेकिन मैं चाहूंगी कि अदील अगर 2 मिनट से, और वो ये कि क्योंकि आप सब लोग यहाँ बैठे हो, ये बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक बिट है जो आई फील कि हम सब यहाँ क्योंकि बैठे हुए हैं, एजाज साहब, अदील, जरताज, उमर साहब, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जिसमें सेल्फ डिस्कवरी और अपने आप को इमोशनल रेगुलेट करना, वो भी बहुत जरूरी एलिमेंट है। मैं समझती हूँ आप सब अग्री करेंगे। और आई थिंक सना, एज अ टेक अवे फॉर मी टुडे, इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग कि आप जैसे लोग और आप सब इंक्लूडिंग NIC कराची एंड बेस अदील, आप सब लोग उस पे काम कर रहे हैं। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।
Thank you so much. Thank you so much, Zora. मेरे closing remarks ये हैं कि I would like to welcome all students of grade 8, 9, 10th and O levels for the Junior CEO Challenge 2021. To build the mindset and to build the momentum, I say that this is not an event. We have started a regime. हर बच्चों को, हर participants को encourage करने के लिए what PACE College is doing it. We will be giving a badge of Junior CEO 2021 and encouraging certificate as well. So that at least ये regime जो NIC कराची, उमर ने भी बात की, एजाज ने भी बात की, असफर और बाकी साथियों ने भी बात की, हम एक regime start कर रहे हैं जो कि एकेडमिया और वाकई जो इकोसिस्टम है दोनों का कोलैबोरेशन है. तो हम छोटे लेवल पे तो इस तरह के कॉम्पिटिशंस देख रहे हैं, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस ग्रैंड इवेंट व्हिच इज ऑन 13th of November, where top qualifiers will be contesting for the grand finale and the winning prize is 100,000 rupees. And next year inshallah we are looking forward to take this competition to the other cities as well, because हमें बहुत रिक्वेस्ट आई है अक्रॉस पाकिस्तान से. इनफैक्ट अब्रॉड से भी रोजाना एक मैसेज, 2 मैसेज आते हैं कि क्या हमारे बच्चों के लिए है कंपटीशन. तो अभी तो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, बट इंशाल्लाह we'll try to bring this similar concept with the collaboration of NIC inshallah in future, so that कि हम maximum लोगों को benefit कर सके. And thank you so much Sana for the wonderful hosting. Thank you so much. So 13th November is the date for Junior CEO Challenge, and deadline I think हमारी कुछ दिनों में ही है. So please apply now and be a part of this wonderful event. So thank you so much all of you, Umar Saab, Adil, Huma, Asfar, Zora, Ijaz Saab, and I think Zartaj left. And thank you. Yeah. Thank you. बहुत शुक्रिया. Allah Hafiz. Thank you everyone.